اردو کہانی میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو دوستی کے بارے میں ایک مزیدار کہانی سنانے والے ہیں۔ وہ میری پہلی اور آخری سہیلی تھی۔ میں اس کو دل و جان سے چاہتی تھی، اس پر اعتبار کرتی تھی۔ وہ پہلی لڑکی تھی جس نے مجھے اپنے دلرانہ طبع کی بدولت متاثر کیا تھا۔ منزہ نے 9ویں میں ہمارے اسکول میں داخلہ لیا اور میری ہم جماعت ہو گئی۔ جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ کم عقل نہیں ہے۔ وہ بات کو جلد سمجھ جاتی تھی، فضول بات بھی نہ کرتی، مگر اپنی دلچسپ گفتگو سے متوجہ کر لیتی۔ کچھ تیز تراز بلکہ بولڈ کہوں تو بے جانا ہوگا، اس سے قبل میری کوئی سہیلی نہ تھی۔ میں دوست بنانے سے یوں ہی ڈرتی تھی کہ امی کہتی تھی سہیلیاں سوچ سمجھ کر بنایا کرو اور سہیلیوں پر زیادہ اعتماد مت کرنا۔ دراصل امی شکی مزاج تھیں، وہ مجھ سے ملنے والی لڑکی کو جانچتی اور ان سے میرے میل جول پر کڑی نظر رکھتی۔ محلے کی کوئی لڑکی ملنے آ جاتی تو اس کے جانے کے بعد مجھ سے 1000 سوال کرتی کہ کون تھی، کیوں آئی تھی۔ تبھی میں ان کی انکوائری سے بچنے کی خاطر سہیلیاں نہیں بناتی تھی۔ کلاس کی لڑکیاں ایک ساتھ شاپنگ کو جاتی، گھریلو تقریبات میں ایک دوسرے کا مدعو کرتی اور ایک دوسرے کے گھر آتی جاتی تھیں، مگر میں الگ تھلگ رہتی تھی تاکہ نہ راہ و رسم بڑھے اور نہ یہ میرے گھر تک آئیں۔ لیکن منزہ سے ملتے ہی اس کی سحر میں گرفتار ہو گئی تھی۔ جلد ہی ہم پکی دوستی ہو گئی اور میں اپنی ماں کی ساری نصیحتیں بھول گئی۔ اسکول سے چھٹی ہوتے ہی ہم اکٹھے چل پڑتی۔ ہمارے گھروں کا راستہ ایک تھا، میرا گھر پہلے آتا، آگے وہ اکیلی اپنے گھر تک کا راستہ طے کرتی۔ کافی دنوں تک امی کو میں نے منزہ کے بارے میں نہ بتایا کہ میں اس لڑکی کی دوستی کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ امی کہتی تھی کہ وہ جہاں دیدہ ہے، کسی لڑکی کو ایک نظر دیکھ کر پہچان جاتی ہیں کہ وہ کیسی ہے۔ بس میں نے منزہ کو ایک بار بھی اپنے گھر آنے کا نہ کہا، حالانکہ روزانہ وہ میرے گھر کے سامنے سے گزرتی تھی۔ ایک دن اس نے شکوہ کیا، اس کے طعنوں کے باعث بالآخر مجھے اس دوستی کے رشتے سے پردہ اٹھانا ہی پڑا۔ امی کو منزہ کے بارے میں بتایا اور کہا کہ کسی دن اس کو گھر لے کے آؤں گی، مگر حسب عادت ماں نے سوالات سے پریشان کر دیا تو میں رو پڑی۔ امی سے کہہ دیا، ماں یہ کیسا ستم ہے کہ آپ مجھ کو میری ہم عمر لڑکیوں سے دور رکھنا چاہتی ہیں؟ کس جرم کی سزا میں میں تنہا رہوں جبکہ میری کوئی بہن بھی نہیں ہے؟ میرے رونے پر امی کا دل نرم ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم اس کو گھر لے آؤ، میں منزہ کو دیکھ لوں گی، تو بے شک پھر تم اس کے گھر بھی چلی جانا، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا، بس ذرا محتاط رہنا۔ آج کی سہیلیوں کا کچھ بھروسہ نہیں ہوتا، غلط قسم کی لڑکی سے دوستی ہو جائے تو زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ ماں نے پھر وہی بات دہرائی جس سے میں چڑھتی تھی۔ میں نے سر پکڑ لیا، تبھی امی نے مجھ کو پیار کیا، منایا اور اس دن کے بعد انہوں کو مجھ پر کبھی اس بارے میں کچھ نہ کہا۔ یوں میری اور منزہ کی سنگت بے خوف و خاطر ایک خاص نہج پر چل پڑی۔ پھر تو وہ میری زندگی کا لازمی حصہ بن گئی، میری خوشیوں کی ساتھی۔ اب میں اسے اپنے دل کی ہر بات بتا دیتی تھی، یوں لگتا تھا کہ اسی کی خاطر اسکول جاتی ہوں۔ کبھی بخار میں بھی چھٹی کرنے کو دل نہ کرتا۔ جس روز وہ اسکول نہ آتی میرا دن بہت بزرا گزرتا، اور جس روز کسی وجہ سے مجھ کو چھٹی کرنی پڑتی وہ گھبرا کر چھٹی کے بعد میرے گھر چلی آتی۔ منزہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، جبکہ میرا تعلق ایک کھاتے پیتے گھر سے تھا۔ ہم ایک چھوٹے سے شہر میں رہتے تھے۔ میرے والد صاحب کی اس شہر میں بہت عزت تھی، وہ ایک شریف آدمی تھے، کسی سے تعلق بات نہ کرتے، کبھی کسی سے جھگڑتے نہ تھے۔ ہم کو خوش اور آسودہ حال دیکھنے کے لیے دن رات محنت میں مگن رہتے۔ تبھی ہمارا گھر سکون کا گہوارہ تھا، لیکن اس پرسکون گھر پر بجلی گرائی بھی تو کس نے؟ وہی جو میری پہلی اور آخری دوست بنی تھی، جس کا نام منزہ تھا۔ میں نے میٹرک کے بعد اکٹھے کالج میں داخلہ لے لیا۔ ایک دن میں کالج کے لیے نکلی تو دروازے پر منزہ مل گئی۔ وہ روز ہی میرے گھر کے دروازے پر دستک دیتی تھی اور میں اس کے ساتھ کالج چلی جاتی تھی۔ اس روز اس کو آنے میں ذرا دیر ہوئی تو میں کالج جانے کو نکل پڑی، تبھی مٹ بھیڑ ہو گئی۔ وہ بولی، آج اکیلے ہی چل دی؟ میں سمجھی تم آج نہیں جا رہی، اتنے میں آنے میں اتنی دیر جو کرتی، انتظار تو کرتی اپنی طرف سے، سمجھ لیا۔ اس نے شکوہ کیا۔ خیر حسب معمول باتیں کرتی کالج پہنچ گئی۔ تیسرا پیریڈ فری تھا، سوچا کینٹین جا کر کچھ لیتے ہیں۔ ہم نے چائے لی، جیب میں سے بل ادا کیا، بیگ کھولا تو اس میں ایک لفافہ دکھا، نکالا تو تھوڑا بھاری لگا۔ میں نے اسے بیگ میں واپس ڈال دیا کہ بعد میں دیکھوں گی۔
बिल अदा करके हम क्लास में आ गए। जब पीरियड खत्म हुआ तो मैं जल्दी से बाहर निकली और ग्राउंड के कोने में बैठ गई। बैग से लिफाफा निकालकर खोला तो एक खत और एक लड़के की तस्वीर निकली। हैरान रह गई कि ये लिफाफा मेरे बैग में कहाँ से आ गया। खैर मैंने खत को पढ़ना शुरू किया। जो जो इबारत को पढ़ती जाती थी हैरत में इजाफा होता जाता था। इसी दौरान मुनज़्ज़ा मुझको तलाश करती हुई वहाँ आ गई और मुझे परेशान देखकर बोली, नीलू क्या बात है, क्यों परेशान हो? तभी मैंने खत और तस्वीर सामने कर दी कि खुदा जाने ये किसका खत और फोटो है, लेकिन हैरत की बात यह है कि ये मेरे बैग में से निकले हैं। इस पे वो कहने लगी, अच्छा तो तुमने किसी से नाता जोड़ लिया है? नहीं मुनज़्ज़ा, मैंने किसी से नाता नहीं जोड़ा, बल्कि मैं तो परेशान हूँ कि आखिर ये है कौन। अभी भी और कुछ कहने वाली थी कि उसने मेरी बात काट दी। अरे ये तो वही लड़का है जो हमारे पड़ोस में रहता है, क्या तुमने इसको कभी नहीं देखा? नहीं। तभी वो गोया हुई, ये तो बहुत अच्छा और शरीफ लड़का है। इस पर मैंने इसके खत को खोल कर दिखाया। इसमें एक दास्ताने इश्क रकम थी और मरने जीने की बातें कि मैं आप पर फिदा हूँ और जब से तुमको देखा है मेरे दिल का चैन मिट गया है। शादी करके आपके साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। आपने इनकार किया तो जान की बाजी लगा सकता हूँ। कॉलेज का टाइम खत्म हो रहा था, हम साथ निकले। जब मेरा घर आया तो दरवाजे पर रुककर मुनज़्ज़ा ने खुदा हाफिज किया। इधर उधर देखा जैसे किसी को ढूंढ रही है, फिर आगे चली गई। यकायक मेरे जहन में ख्याल आया कि कहीं ये खत उसी ने तो मेरे बैग में नहीं रखा। क्लास में वही मेरे साथ होती थी। अगले लम्हे में मैंने इस ख्याल को झटक दिया। इतनी अच्छी मेरी सहेली पर ऐसी बदगुमानी से खुद मुझको तकलीफ महसूस होने लगी थी। घर आकर बहुत बेदिली से मैंने खाना खाया। मेरा मूड अच्छा ना था कि कमरे में अम्मी ने कहा, नीलूफर आज शाम कुछ मेहमान आ रहे हैं, चाय के साथ कुछ कबाब भी तैयार कर लेना। मैंने उसी वक्त किचन जाकर कबाब तैयार करके रख दिए। जब मेहमान आ गए अम्मी ने कहा चाय लेकर आओ। जब मैं ट्रे लेकर गई तो वहाँ 3 खातून थी जो मुझको गौर से देख रही थी। अम्मी ने मुझको बताया कि ये क्यों आई थी। दिन गुजरते रहे और मुनज़्ज़ा हस्बे मामूल रोजाना कॉलेज इकट्ठे जाते आते रहे। एक दिन उसने मुझको बताया कि वो देखो वहाँ जो लड़का खड़ा है ये वही है जिसने तुमको खत लिखा और तस्वीर भी उसी की थी। मैंने गौर से देखा, वाकई वही तस्वीर वाला ही था। वो भी तस्वीर जैसा खूबसूरत था। हमारे कॉलेज के गेट से थोड़े फासले पर खड़ा था और उसकी तवज्जो हमारी तरफ थी। उसके बाद वो रोज आने लगा। वो हमसे कोई बात ना करता, बस दूर से खड़ा देखता रहता। इम्तिहान खत्म हुए तो हमारा कॉलेज जाना खत्म हो गया। मैं सारा वक्त घर में रहती थी। कभी कभी मुनज़्ज़ा आ जाती थी, तब वो मुझे कुछ न कुछ उस लड़के के बारे में बताती रहती। ज्यादातर उसकी तारीफ करती थी। एक दिन उसने कहा कि ऐ बेखबर, ये लड़का यूं ही नहीं आता, उसके घर से औरतें तुम्हारा रिश्ता लेने आ चुकी हैं। उसने तस्वीर भी इसी वजह से तुम तक पहुंचाई है कि ताकि तुम भी उसको एक नजर देखकर पसंद कर लो। उसने अपनी माँ और बहनों को तुम्हारे घर खुद भेजा था और वो तुमको पसंद भी कर चुकी हैं। अब उन्होंने बात डाल दी है, अब तुम्हारी अम्मी के जवाब का इंतजार है। उन्होंने कहा कि सोचकर कुछ दिनों बाद जवाब देंगी। इस लड़के का नाम नौशिरवान था, ये भी मुनज़्ज़ा नहीं बताया था। इसके बाद तो वो इस लड़के के बारे में मालूमात का जरिया बन गई। इस बार जब वो ख़वातीन आई तो उन्होंने मुझसे बातें की। वो मुझको अच्छी लगी। मैं जान चुकी थी कि वो नौशिरवान के घर से आई हैं। मैं थोड़ी देर बाद वहाँ से उठ गई। मुझको मालूम न था कि अम्मी की उनके साथ क्या बातें हुई थी। बहरहाल इन ख़वातीन के बार बार हमारे घर आने जाने से मेरे दिल में नौशिरवान के लिए जगह बन गई। अब मैं आज खुद उसके बारे में सोच विचार करने लगी। मुनज़्ज़ा ने उन सोचों में ज्यादा आग लगाई, मेरे दिल में शौक पैदा किया। उसकी बातों ने ही मेरे अंदर सोए हुए जज्बों को जगाया, गोया जलती पर तेल का काम किया। वो जब आती कहती, नीलो नौशिरवान तुम पर मरता है, देखो उसका दिल नहीं तोड़ना, इसका दिल तोड़ने से रब रूठ जाता है। अब वो इसरार करने लगी कि तुम नौशिरवान को खत लिखो, उस खत का जवाब ही लिख दो जो उसने तुमको लिखा था। मेरी इसमें समझ में न आता था कि क्या करूँ। उन दिनों सेल फोन तो थे नहीं, खत में लिखना ना चाहती थी। मुनज़्ज़ा मुझे आमादा करती रही, उसको खत लिखो, और मैंने बिलाखिर खत लिखकर दे दिया। अब वो मेरा खत उस तक और उसका मुझ तक पहुंचाने लगी। 2-4 बार खत लिखने के बाद मैंने मजीद खत लिखने से इनकार कर दिया। वो बोली, तुम्हारी अम्मी ने तो हाँ कर दी है, अब तुमको डर किस बात का है। गर्ज वो इसकी बातें मुझ तक और मेरी बातें उस तक पहुंचाने लगी। उसके बाद भी नौशिरवान की वालदा और बहनें मुतअद्दिद बार आईं, यहाँ तक कि घर में शादी के तज़किरे होने लगे और मुझे इल्म हुआ कि नौशिरवान से मेरी बात पक्की हो गई है। अब कश्ती किनारे लगने वाली थी और मैं नौशिरवान की होने वाली थी। तभी मेरे दिल में बगैर मिले ही खुद ब खुद उसके लिए मोहब्बत के जज्बात पैदा हो गए और मैंने उसके ख्यालों में रहने लगी। क्या खबर थी कि जिसने बागबान
नौजवान बनकर मेरे दिल में मोहब्बत का चमन खिलाया है, वही आगे बढ़कर इस बाग को आग लगा देगी और हमारी जन्नत लूट लेगी। मैं तो नौशेरवान से कभी ना मिली थी। मुझको घर से बाहर कदम रखने की इजाजत की कब थी, मगर मुनज़्ज़त तो रोज उससे मिलती थी। नौशेरवान उसके पड़ोस में रहता था। पहले वो मेरे बहाने से मिलती थी, फिर अपने बहाने से मिलने लगी। जाने कब उनके दरमियान ऐसा रिश्ता बन गया कि उन्होंने मुझे हरफ गलत की तरह मिटा दिया और मुझको रास्ते से हटा कर ये दोनों एक हो गए। अम्मी इधर मेरी शादी की तैयारियों में लगी थी। वो जो नौशेरवान को अम्मी और उसकी और मेरी शादी की तैयारी कर रही थी, किसी को खबर न थी कि दरमियान में क्या हो चुका है। जिसने खुद अपने घर वालों को मेरे घर रिश्ते के लिए भेजा, उसने खुद ही इनकार कर दिया। नौशेरवान की वालिदा और बहन इतनी शर्मिंदा हुई कि हमारे घर ये बताने भी न आई कि उसके लड़के ने तुम्हारी लड़की से शादी से इनकार कर दिया है। एक दिन जब मैं अपने दुपट्टे पर गोटा टांग रही थी, मेरी दोस्त हंसती मुस्कुराती आई और पूछा, क्यों दुपट्टे पर गोटा टांग रही हो, कब शादी हो रही है तुम्हारी? मैं समझी कि वो मुझे मुबारकबाद देने आई है। मुझको क्या खबर थी कि वो मेरे अरमानों पर बिजलियां गिराने आ गई है। जितनी देर बैठी रही इधर उधर की बातें करती रही, लेकिन उसने मुझे नौशेरवान के नाम से नहीं छेड़ा, जबकि मैं मुंतजिर थी कि वो उसका जिक्र करेगी, उसका कोई पैगाम देगी, लेकिन उसने नौशेरवान का नाम तक ना लिया। मैंने बहाने से उसको वो जोड़े दिखाए जो अम्मी ने मेरे जहेज के लिए खरीदे थे। वो ज़ेर लब मुस्कुराती उठकर चल दी। मुबारकबाद भी न थी। अलबत्ता जाते हुए एक लिफाफा मेरी मेज पर रख दिया और कहने लगी, मेरे जाने के बाद उठाकर देख लेना, सरप्राइज है तुम्हारे लिए। उसके जाने के बाद मैंने वो लिफाफा खोला। उसमें दावतनामा था शादी का। नाम पढ़कर मेरे हाथ कांपने लगे और आंखों तले अंधेरा छा गया। मैं बिस्तर पर गिर गई। कितनी संग दिल थी वो, मुझ पर कैसा वार किया उसने, ऐसा किया। ये उसकी और नौशेरवान की शादी का कार्ड था। वो मुझे अपनी शादी का बुलावा देने आई थी। वो जो गहरी दोस्त थी मेरी, जिस कदर दुख उसकी इस हरकत से हुआ, उस कदर दुख कभी किसी बात से ना हुआ। आज माँ की बातें और नसीहतें याद आई। कितना सच कहती थी वो कि सोच समझ कर दोस्त बनाना और कभी किसी सहेली पर ज्यादा भरोसा न करना। बरसों गुजर गए इस बात को अब भी सोचती हूँ कि एक मुनज़्ज़ा ही ऐसी दोस्त थी, या वाकई दोस्त ऐसे ही होते हैं, ये आज समझ नहीं पाए। लेकिन उसके बाद फिर कभी किसी को दोस्त न बना सकी। बस वही मेरी पहली और आखिरी सहेली थी। ऐसे होते हैं धोखा देने वाले दोस्त, जो पहले दिल में जगह बनाते हैं और उसके बाद आपकी जिंदगी में अंधेरा कर देते हैं। अल्लाह पाक सबको नेक दोस्त अता करे और ऐसे बुरे दोस्तों से बचा कर रखे। आमीन। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। शुक्रिया।